Hello, my dear students. We are going to do our third chapter, The Lake of the Moon. It's from 6th standards book. So, very interesting chapter, and you will get a number of new things in this chapter. So, let's get started. Behind closed doors, I'm a fool for your love. The Lake of the Moon. Once upon a time, a large herd of elephants lived in the jungle. Their king was a huge, majestic tusker who loved his herd. You know, herd of elephants means a group of elephants, and all groups are having one leader. And the leader here, he was very majestic, very powerful, and he was a very good leader. Tusker means elephant. टस्कर मीन्स द एनिमल हु इज हैविंग बिग टीथ, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं ना. एंड ही लव्ड हिज हर्ड वेरी मच. हर्ड मीन्स ग्रुप. अ severe drought hit the area. There was no rain for some years. All the rivers and ponds dried up. Birds and animals started dying of thirst. The wild elephant suffered too due to lack of water. The king of elephants understood that many of them would die of thirst if they didn't get water soon. He had to find water for his herd as quickly as possible. He told the elephants to go in different directions to look for water. बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था एक एरिया में और पानी बिल्कुल नहीं था, बारिश नहीं हुई. सभी जितने भी रिवर्स और पॉन्ड्स थे वो सूख गए. बर्ड्स और एनिमल्स थे, दे वर डाइंग ऑफ थर्स्ट, वो प्यास से मर रहे थे. एंड वाइल्ड एंड एलिफेंट सफ़र ड्यू टू लैक, और ये जो एलिफेंट्स थे, जंगली हाथी थे, दे वर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ वाटर. उनको बहुत कम पानी मिल रहा था, कमी थी पानी की, तो वो सफ़र कर रहे थे. और जो उनका किंग था, द किंग ऑफ, ही वॉज वेरी मेजेस्टिक टस्कर, ही सेड टू हिज अदर एलिफेंट्स दैट दे शुड गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड फाइंड आउट द वाटर. बता कि तुम अलग अलग डायरेक्शंस में जाओ और वहाँ से पानी ढूंढ के लाओ. One of them found a large lake full of water in another jungle far away. The king was happy. He ordered all the elephants to start moving towards the lake. It was a beautiful lake. However, close to the lake was a colony of rabbits. The elephants had to pass through the colony. Thousands of rabbits were crushed to death and thousands more were injured. The rabbits were in the state of panic. Now what happened? When the elephants, they went to different directions, one of them, they got one lake. It was a beautiful lake full of water. He became very happy and he told his leader that he found a lake. Now the leader, he was also very happy and he said that we will move to that lake. तो उनको एक लेक मिली जो पानी उसमें भरा हुआ था. तो उनके लीडर ने बोला कि चलो हम लोग उधर चलते हैं. लेकिन रीज़न क्या था कि उसके पास ही देयर वाज अ कॉलोनी ऑफ रैबिट्स ऑल्सो, कि वहाँ पे बहुत सारे खरगोश रहते थे. एंड व्हेन दीज बिग टस्कर्स वर मूविंग, मैनी रैबिट्स दे वर क्रश्ड अंडर द हैवी फीट ऑफ द एलिफेंट. कि जैसे ही इन्होंने चलना शुरू किया इनके ग्रुप ने, तो बहुत सारे जो रैबिट्स थे इनके पाँव के नीचे आके मर गए, दब गए, और कुछ बहुत सारे इंजर्ड, जख्मी भी हो गए. अब ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत सिचुएशन ऐसी थी, पैनिक की सिचुएशन थी, वो घबरा गए. देयर किंग कॉल्ड अ मीटिंग. द हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट इज पासिंग थ्रू आवर कॉलोनी. ही सेड, दे हैव ऑलरेडी किल्ड thousands of us and several thousands have been injured. We must take urgent steps to prevent more deaths. I want all of you to think of the way to save our race. Now, there was another leader of the rabbits. He called a meeting. उसने एक मीटिंग बुलाई. उसने कहा कि हमारी जान को बहुत खतरा है. ऐसे तो उन्हें कितने ही हज़ारों ही जैसे मार दिए हैं रैबिट्स, और हो सकता है कि और भी बहुत इंजर्ड भी हुए हैं. तो हमें कुछ ऐसा स्टेप, ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि हम लोग बच सकें. द रैबिट्स थॉट एंड थॉट. उन्होंने बहुत सोचा. हाउ कुड दे स्टॉप द एलिफेंट्स? वन लिटिल रैबिट स्टूड अप. उन्होंने बहुत सोचा कि इतने बड़े एलिफेंट्स को हम कैसे रोक सकते हैं.
उनमें से एक छोटा सा रैबिट उठा, उसने कहा, योर मैजेस्टी, इफ़ यू सेंड मी एज योर मैसेंजर टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, I may be able to find a solution. He said, okay, my majesty, your majesty, if you will order me or trust me, then I will go and talk to the leader of the elephants. कि आप अगर मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आप मुझे एक बार उनके ग्रुप के जो लीडर है, एलिफेंट्स का जो लीडर है, उसके पास मुझे भेज दीजिए बातचीत करने के लिए। The little rabbit hurried to the spot where elephants lived. He saw a group of elephants returning from the lake. Right in the middle was the king of elephants. To get near him was impossible. I will be crushed to death, thought the rabbit. So he climbed up a huge rock. O king of elephants, he shouted, hear me please. The king heard his voice and turned towards him. Now he went the place where these elephants were residing. So he found that if he will talk to them, they won't listen because he's too small. Then he decided to sit on a huge rock. वो एक बहुत सारी चट्टान के ऊपर बैठ गया और उसने ऊंची से आवाज़ लगाकर किंग को बोला कि आप मेरी आवाज़ सुनिए। Who are you? he asked. उसने बोला, आप कौन हो? I am a messenger, said the rabbit. Replied the rabbit. A messenger? From whom? I am a messenger from the mighty moon. उसने कहा कि मैं एक संदेशवाहक हूँ। किंग ने बोला, हाथियों के राजा ने बोला, किसके मैसेंजर हो? उसने कहा कि मैं उस शक्तिशाली चंद्रमा का मैसेंजर हूँ। Really? What do you want? Is there a message for me from the moon? Yes, yes, your majesty, but you must not be angry with me. I am just a messenger. I am just doing my duty. उसने कहा, बिल्कुल हाँ जी महाराज, लेकिन आप मेरे साथ गुस्सा नहीं होंगे, एंग्री नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक संदेश लेके आया हूँ जो कि मेरी एक ड्यूटी है। वेरी वेल, अ मैसेंजर इज नेवर पनिश्ड फॉर व्हाट ही सेज, से व्हाट यू हैव कम टू से, आई शैल नॉट हार्म यू, यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटी। कहता, ठीक है, तुम बेझिझक अपनी बात मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा क्योंकि तुम तो अपनी सिर्फ ड्यूटी ही कर रहे हो। Said the elephant king. Sir, the moon says, said the little rabbit. उसने कहा, हाँ सर, जो चंद्रमा है वो ये कह रहा है, You, the king of elephants, have brought your herd to my holy lake. कि तुम अपने इतने सारे हाथियों के झुंड को लेकर मेरी पवित्र लेक में, पवित्र झरने के पास आ गए हो। You and your herd have soiled its water. तुम और तुम्हारे हाथियों ने, तुम्हारे ग्रुप ने मेरे पानी को गंदा कर दिया है। You and your herd have killed thousands of rabbits on your way to the lake. और तुमने बहुत सारे ही खरगोशों को मार दिया है अपने रास्ते में आते हुए। You must know that rabbits are under my special protection. तुम्हें पता है कि ये मेरी एक शरण के अंदर है, मेरी रक्षा के अंदर है। Everyone knows that king of the rabbits lives with me. सबको पता है कि जो खरगोशों का राजा है वो मेरे साथ रहता है। I ask you not to kill any more rabbits. मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम और खरगोशों को नहीं मारोगे। If you don't agree, something bad will happen to you and your herd. अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इससे सहमत नहीं होगे, तो तुम और तुम्हारे झुंड को कुछ भी उनके साथ बुरा हो सकता है। The king of elephants was shocked. He looked at the little rabbit. You are right, he said. We may have killed many rabbits on our way to lake. I shall see that you don't suffer anymore. I shall request the moon to forgive me for my sins. Please tell me, what should I do? उसने कहा, हाँ बात तो तुम्हारी सही है। जब हम आए तो बहुत सारे जो रैबिट्स थे वो हमारे पाँव के नीचे आकर कुचले गए, मारे गए। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मून से कि वो मुझे माफ़ कर दे और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कम विथ मी अलोन, उसने कहा मेरे साथ अकेले आओ। सेड द रैबिट, replied the rabbit, come, I shall take you to the moon. The little rabbit took a huge elephant to the lake. There they saw the moon reflected in still water. There your majesty meet the moon, said little rabbit. उसको उस झरने के पास, उस लेक के पास ले जाता है और उसको दिखाता है वो मून जो है वहाँ पे, जो कि पानी में बिल्कुल स्टिल है और वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।
Let me worship moon, said the elephant, and he dipped his trunk into the water. At once the water got disturbed and the moon in the water moved to and fro. उसने कहा कि मुझे अपनी इसकी पूजा करने दो, और उसने अपनी जो सूंड थी, अपने ट्रंक था, उस पानी में डाली, और जैसे ही डाली तो वो पानी हिल गया, जिससे कि मून की जो छवि थी वो भी हिलनी शुरू हो गई। द रैबिट सेड, नाउ द मून इज एंग्रियर देन एवर। उसने कहा, ओह देखो, मून तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। वाई? आस्क्ड एलिफेंट किंग। व्हाट डिड आई डू? उसने कहा, क्यों, मैंने क्या किया? यू टच्ड द होली वाटर ऑफ द लेक, रिप्लाइड द रैबिट। उसने कहा, तुमने उस पवित्र पानी को छुआ है। द एलिफेंट बोड हिज हेड। उसने अपने एलिफेंट ने अपना सिर नीचे झुका लिया। प्लीज आस्क द मून टू फॉरगिव मी, नेवर अगेन विल वी टच द होली वाटर ऑफ दिस। उसने कहा, प्लीज़ उसको मून को बोलो कि मुझे माफ़ कर दे, हम दोबारा इस पानी को टच नहीं करेंगे। नेवर अगेन विल वी हार्म द रैबिट हु द मून लव्स सो मच। कहते ना ही हम इस पानी को कभी टच करेंगे और ना ही हम इन खरगोशों को जो कि मून को बहुत ही प्यारे हैं उनको हर्ट करेंगे। एंड द किंग एंड हिज हर्ड वेंट अवे, और वो फिर चले गए। Soon there was rain and elephants lived happily. और जल्दी ही बारिश हुई और एलिफेंट्स बहुत खुशी खुशी रहने लग गए। It didn't occur to them ever that a little rabbit had fooled them. उनको आज तक ये चीज़ नहीं पता चली कि इस छोटे से खरगोश ने कैसे उनको मूर्ख बना दिया। So, have you seen, students, how nicely this small creature he turned the table against that big animal? So, ये नहीं होता कि हमारी अगर फिजिकली हम लोग बड़े हैं तो हमारा दिमाग भी बड़ा होगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो। टिल देन इट्स अ टाइम टू से बाय बाय।